financial statement analysis is one of the most important part of your finance. This is where the actual finance starts. Schools like Harvard and Wharton, they have dedicated executive program in financial statement analysis only. They charge you 15, 20 lakhs for that. FSA, पढ़ाने के लिए. But यहाँ पे we will try our level best to teach you as much as we can. Okay. So financial statement analysis is one of the most important part of your finance का चीज. Now why it is so? Because जब मैं बात करता हूँ ना finance के बारे में, ठीक है? So when we talk about finance, we talk about basically money. We talk about money, money management, how company makes money, how do they spend money, and how much assets they've made by their business activities. Okay. So ये सब चीजें ना तुम्हें financial statements बताती है, which is nothing but income statement. In India, it is called as profit and loss. Then you have cash flow statement. Then you have balance sheet. Okay, ये तीन तुम्हारी सबसे important statements है. Then you have equity changes वाला एक statement है. वो US गैप में ज्यादा पढ़ाया जाता है, आई गैप में वो आता नहीं, इंडियन गैप में. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फंड फ्लो स्टेटमेंट. मेरे ख्याल से वो इंडिया में होता है, ग्लोबल लेवल पे वो ज्यादा होता नहीं है, बट हमारे बीकॉम के करिकुलम में, बीएमएस वगैरह के करिकुलम में उसको पढ़ाया जाता है. कुछ कुछ बी स्कूल जहाँ पे फंड फ्लो आज भी पढ़ाया जाता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू लर्न फंड फ्लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको सॉर्ट ऑफ अवॉइड करेंगे. ठीक है. So financial statement analysis is going to be the core of finance because that gives you an idea कि एक कंपनी क्या काम करती है और कैसे करती है. दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये बच्चों को बताया नहीं जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं बात करूं तुम्हारे बिजनेस के बारे में, ओके, अगर मैं बात करूं तुम्हारे बिजनेस के बारे में, एक कंपनी कितना अच्छा बिजनेस करती है, ये उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद पता चलता है. There are a lot of unicorns in the country. There are a lot of unicorns in the country today in India, and you know they are valued at $2 billion, $3 billion, $5 billion, and $10 billion. Now, when you talk about these kind of thing, right? That XYZ unicorn has been valued at, let's say, $10 billion, but that company is not making money. That company is actually getting into losses. The company is having a great cash burn. हाँ, cash burn. याद रखना, कंपनी बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रही है, सो कंपनी के पास ना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है. And then, you know, a lot of unicorns give sort of an excuse, you know what, we're at our initial level and customer acquisition and client acquisition is the main key, and we're trying to, you know, kill the competition, and we're trying to have a lot of, you know, XYZ things on board and blah 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 blah. And what happens eventually, that these kind of companies, they do a lot of cash burn, and eventually they understand that they're completely fucked because they don't have any more money left with them. Then what they do, on the name, or rather in the name of, you know, sort of showing a profitability to your stakeholders, they start doing cost cutting by sacking their customers. तो ये एक चीज ना आजकल बहुत कूल चल रही है. जैसे ना इंडिया में एक कूल चीज है आजकल होती है कि मैं ड्रॉप आउट हूं, मैं इधर का ड्रॉप आउट हूं, मैं उधर का ड्रॉप आउट हूं, मैं इस कॉलेज का ड्रॉप आउट हूं, मैं उस कॉलेज का ड्रॉप आउट. ये एक ट्रेंड है, ये एक हवाएं चल रही है ड्रॉप आउट की. बाद में इनको भी कुछ इज्जत नहीं मिलने वाले, दैट इज फॉर श्योर. सो ड्रॉप आउट का जैसे फंडा चलता है ना, वैसे आजकल यूनिकॉर्न का फंडा बड़ा चल रहा है, स्टार्टअप का फंडा, कि यार हम तो लॉसेस में है बट हमारा वैल्यूएशन 2 बिलियन है. वैल्यूएशन तो कर सकते हैं यार, सब्जेक्टिव है. वैल्यूएशन तो कर सकते हैं, सब्जेक्टिव है. सो यहाँ पे आपको एक चीज पता चलती है, एक जो एनालिस्ट होता है वो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन एनालिस्ट जॉब, या फिर एक सीएफओ जो होता है, या फिर एक वीपी होता है, या फिर कोई भी फाइनेंस मैनेजर जो होता है, यू हैव टू हैव दोस लेंसेज टू अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस एंड लुक एट अ बिजनेस. Because what happens is, as a chartered accountant, we have been trained to only prepare the financial statement. कि भाई बैलेंस शीट बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, कैश फ्लो बना, ट्रायल बैलेंस बना, हाँ, फिर तेरे को जो फंडे बताए हैं इंडियन गैप में, तेरे जो IAS 9 बोलता है, IAS 10 बोलता है, राइट, उसके तहत, उसके चलते इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स है 1 2 3 4 5 6, राइट, उसके तहत, उसके चलते जो जो चीजें तुझे बताई गई है, अकॉर्डिंगली तू बैलेंस शीट बना, अकॉर्डिंगली तू कैश फ्लो बना. बट ऑलवेज रिमेंबर, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेल्स यू कि जो चीजें तुमने लिखी हुई है तुम्हारे स्टेटमेंट पे, क्या वो सेंस बनती है अगर मैं तुम्हारा बिजनेस देखूं तो.
इसलिए इस प्रोग्राम में एक इक्विटी रिसर्च का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक हमारा मॉड्यूल है वेर इन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विटी रिसर्च, जहां पे हम कंपनीज का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स दैट दिस इज योर बिजनेस and this is your financials. So if you're a unicorn or if you're a startup, you are telling me that you are valued at $10 billion, but you are at a loss. And look at your business. Then I do the competition analysis, blah, 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 blah. And that's where you understand whether you really want to kind of take part into that particular business as a VC, as a PE, as an investment banker, or you don't want to take a part in that particular company. LIC IPO was a great flop. And I told a lot of people that LIC IPO is going to be an actual flop. Okay? The reason was the LIC does a very good business. It's Indian government ka treasury account or something like that. But you need to understand कि LIC का IPO flop क्यों हुआ. Now let's just say you are an investor, you are a retail investor, or let's just say you are a HNI client. So अगर मुझे investment करना है ना LIC में, I am eligible for an HNI investment. So I can put in lot of amount of money. So अगर मैं retail वालों के बारे में बात करूं, retail वाले 2 लाख डाल सकते हैं. As an HNI I can put multiplied by 20 also. Because HNI का लिमिट बहुत ज्यादा होता है. फिर उसके बाद आता है तुम्हारा institutional investors. So if you were an HNI or if you were an individual investor, even if you want to put in 50,000 rupees or 2 lakh kind of a rupees, you need to understand that, you know what? The financial statement looks fantastic. They are great. बहुत पैसा है. Even they burn their cash, they'll still be profitable. But what does the market say? Is the market having good sentiment? So here, though you are financially very sound, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने बैठोगे, एक सेंटीमेंट को भी देखना जरूरी है, विच इज सब्जेक्टिव बट इट्स अ माइक्रो पार्ट ऑफ योर एंटायर फाइनेंस. तो अगर आप देखोगे यहां पे 2-3 चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती है कि मैं इकोनॉमिक्स को समझूं, मैं फाइनेंस को समझूं, मैं अकाउंटिंग को समझूं, और मैं बिजनेस की एक जो बेसिक लैंडस्केप है उसको भी समझूं कि कंट्री में क्या चल रहा है. बिकॉज अगर आपने पैसा डाला होता 20, 25, 30 लाख, day one pay, you would have lost your money by a very good margin. It was 8% down. Okay? It was 8% down. Now imagine your 100 rupees could have become 92 rupees. Understood? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको 2-3 एंगल दे रहा हूं कि यार हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों जरूरी है. ठीक है? Is there anybody who's fainted? Any casualty? कोई बेहोश है या नहीं ना? Everybody is alive, man. ओके, कूल. भाई ये चीज है ना जानना बहुत जरूरी है. रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूं. आप आईपीओ करो रिटेल लेवल पे, आप किसी कंपनी का शेयर बाय करो, हर जगह ये चीजें काम आती है. ओके, हर जगह ये चीज काम आती है. और एक अच्छा एनालिस्ट कौन होता है? एक अच्छा एनालिस्ट वो होता है जो हर एक पहलू, हर एक एंगल को पकड़ के, फाइनेंशियल एनालिसिस को पकड़ के सेंस बनाए. ठीक है? सेंस बनाए कि ठीक है, आप एलआईसी का एग्जांपल साइड में रखो, यूनिकॉर्न का एग्जांपल साइड में रखो. बीच में न्यूज आई थी कि XYZ यूनिकॉर्न ने 10% अपने एम्प्लॉयज को सैक कर दिया, निकाल दिया, बिकॉज अभी उनको प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी है. फ्लिपकार्ट का क्या हुआ था? फ्लिपकार्ट का क्या हुआ था? 5 years बैक फ्लिपकार्ट वॉज मेकिंग 14 crore का लॉस एवरी सिंगल डे. 5 years back, Flipkart was making 14 crore ka loss every single day. Okay. But Flipkart was backed by whom? Flipkart was backed by whom? SoftBank? Walmart? Nah. SoftBank. SoftBank is a private equity. इन लोगों ने फ्लिपकार्ट में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करा था. इन लोगों ने ज्ञान दिया सॉफ्टबैंक को कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आग लगा देंगे. अनु मलिक का डायलॉग. सॉफ्टबैंक बोला चल यार मजा आ रहा है, तूने मेरे को बिजनेस बताया, बिजनेस तो कड़क है तेरा, तोड़ फोड़े. बट जो तू बिजनेस मुझे बता रहा है ना भाई मेरे, वो तेरे फाइनेंशियस में मेरे को दिख नहीं रहा है ना. बुजुर्ग कहे गए हैं कि इंसान हर किसी चीज का ढोंग कर सकता है, पैसे का कोई ढोंग नहीं कर सकता, बिकॉज पैसा दिखाना पड़ता है. ठीक है? तो फ्लिपकार्ट ने बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बनाया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बट फाइनेंशियस में नहीं दिख रहा.
Always remember, if your business is not reflecting in the number sense, there is some problem. If your business is fantastic, but the numbers are not good, there is a problem. Okay. If your business isn't that great, but numbers are great, it can be a good thing, it can be bad thing. ठीक है? I hope समझ रहे कि नहीं समझ रहे? Yes or no, yes or no, फटाफट फटाफट फटाफट. Yes no, yes no, yes no, फटाफट फटाफट फटाफट. मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कि कुछ अलग पढ़ रहे, कैट वैट से दूर होके कुछ अलग पढ़ रहे. बी स्कूल में भी अगर आपको ऐसा पढ़ाया गया, बिकॉज हमारे पास टाइम ही टाइम है. हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है. मैं चाहूँ तो जुलाई तक ले सकता हूँ प्रोग्राम को, कोई लोड नहीं है. बी स्कूल में ऐसा नहीं होता, तो फायदा उठा. फाइन. So that's the power of financial statements. It actually tells you कि तुम्हारा कंपनी का औकात क्या है, कंपनी का लेवल क्या है. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखेंगे HUL, अगर हम देखेंगे PNG, I'll give you one stock. It's one of my favorite, by the way. Stock is going to be the next Nifty 50. लिख लो इसको. पैसा डालना है तो इसमें डालना. दीपक नाइट्रेट. फैबुलस. लास्ट ईयर आपके बोलने पे लिया था. 20-30% तो मतलब लास्ट ईयर से बहुत उठा है वो. अभी फाइनेंशियल के बीच में थोड़ा सा घटा होगा. ठीक है. फाइन. दीपक नाइट्राइट, ये एक है ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ भी बोलो, फैबुलस स्टॉक. आई गिव यू वन मोर स्टॉक. इवन दिस इज आई एम वेरी बुलिश. पूना वाला. ठीक है. मुझे पता भी नहीं इसके रिजल्ट्स कब आए थे. एक हफ्ते पहली बात है. इट्स एन NBFC बाय द वे. इट्स एन NBFC बाय द वे. पूना वाला का जब रिजल्ट आया था ना, ये स्टॉक सिंगल डे पे 18% ऊपर था. कितना? 18% ऊपर था. ठीक है. को राउंड अबाउट 18%, 15% आपको अच्छा खासा मिला होगा. और अगर आप देखोगे YTD मतलब ईयर टू डेट, जनवरी से लेके आज तक आपने 11% कमाया है. अगर मैं बात करूं तुम्हारा दीपक नाइट्राइट के बारे में, अगर हम बात करें, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट्स डाउन. 1 year it has given you round about 11%. 6 months should be down because of the crisis, but over a period of time it has given you round about 10 to 11%. अगर सर ये 1 year कैसे आया? ये May to May आया. हाँ, ये May to May आया. हाँ, ये चीज याद रखना कि आज से लेके 21 का मई, राइट? दैट्स हाउ इट इज. ठीक है. कूल. पॉइंट क्या है यहाँ पे कहने का? पॉइंट यहाँ पे ये है, इतनी सारी NBFCs है मार्केट में. अगर कोई पूना वाला फिनकॉर्प का रिजल्ट देखता और समझता कि इसमें क्या पोटेंशियल है, तो एक दिन में 18% तो कमा लेता. सिंपल सी बात. ठीक है. 1 लाख डाल, 10 लाख डाल, 10 लाख डालता तो 1,80,000 तक तो कमा लेता. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स नंबर 1. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं एज एन MBA ग्रेजुएट, ओके, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, FMS, आप कहीं पे भी चले जाओ, एज एन MBA ग्रेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप हर एक डोमेन जो बात करते हो, विच इज फंड मैनेजमेंट के बारे में हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में हो गया, फिर तुम्हारा लेट्स से बैंक की जॉब हो गई, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया. हर जगह तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा काम आता है. इसके बिना rather 90% of the finance jobs are based on financial statements. So you need to put in extra efforts in understanding, learning financial statement analysis.